हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन और आभार। Ladies and gentlemen, boys and girls, देवी और सज्जनों, this is your host and दोस्त कनिष्क गुप्ता and welcome to our channel Wealthy Talks. Well, this is our third episode of hashtag मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जिनका बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट स्पेसेस में रहा है। दिस मैन comes from fintech to edtech, from Bombay to Bangalore. He has done it all. तो हम आपको लेके जाने वाले हैं, मिलाने वाले हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से जो अब बहुत जल्द अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने वाला है। ही इज द एक्स डायरेक्टर ऑफ अनअकैडमी विद मोर देन 9 years of experience. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ronit Kopkar. So thank you so much Ronit for being here, guys. Welcome Ronit Kopkar from Mumbai. And because I know आप मुंबई से हो and everyone in Mumbai loves cutting chai and vada pav. तो hey, thank you. Cheers. Well, before we start our interview, I would like to tell you all one thing कि मैं और रोनित एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और रोनित के बारे में एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है is that he might not be there for you in your good days, but guys, he'll always be there for you in your bad days. So thank you once again Ronit for being my guest. This guy is just being a little formal. We've been ex-colleagues and हमने काफ़ी connect किया है outside of work also. एक जो common बात है हम दोनों में वो ये है कि हम दोनों शाहरुख खान के बहुत बड़े fans रहे हैं. Correct. Right. So and ऐसी बात नहीं है यार, good days में भी बुलाया कर, मैं शामिल होना चाहूँगा. Let's not get personal. So Ronit, let's start with our hashtag मेरी investment story. और आपके लिए मेरे पास पहला question ये है कि Ronit, you come from lot of backgrounds. Like आपने edtech में भी काम किया, you have been with Unacademy, we have been together there. Then you have spent like good 6 years in fintech space as well. And now you are on this entrepreneur journey कि आप अपना खुद का you want to make something big. So take us through your vision कि यार this is what my vision is and this is how I want to make it big. अच्छा यार, तो मुझे ना हमेशा से रीडिंग का बहुत शौक था. Correct. मैं कहानियाँ पढ़ता था, स्टोरीज पढ़ता था, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था. And that is how I came across autobiographies of a lot of successful entrepreneurs. And I was fascinated and inspired by their ability to impact a lot of lives. Correct. तो मेरे लिए आई थिंक स्टार्ट वो था, तो तब दिमाग में कीड़ा गया था कि यार कि खुद का भी कुछ करेंगे वैसे, राइट. एंड फिर वो जर्नी सारी वो रही है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. एंड अगर मैं विजन बोलूँ तो यार यही था कि ऐसा कुछ बनाओ, build something that people want. Correct. Right? And anything that will help people improve their standard of living, anything that will add value to their lives, right? And of course, the idea is also to earn a little bit out of that. Correct. That's true. But Ronit, we both come from middle class families. Like हम दोनों ही middle class boys हैं, right? तो इस चीज में ना there are a lot of risk involved in this. So how have you planned to overcome your risk factor in this? क्योंकि है तो risk boss, खुद का एक startup खोलना, then leaving a good stable job and then starting your own business, it involves some risk. So how do you plan to overcome it? हाँ, so यार ये बात तो सही है. If there is anything that is consistent, correct, in startup life, and by the way it's been like 7-8 months for me. Correct. उससे जो मेरी लर्निंग ये रही है कि अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो वो है chaos and randomness. तो रिस्क तो बहुत है. द वे आई लुक एट इट इज कि वन प्रॉब्लम एट अ टाइम टाइप में इसको लेता हूँ, एंड आई ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैट. One of my mentor once told me कि Ronit, in your startup journey, right, one thing that is going to be very consistent is going to be that out of 30 days in a month, 25 days are going to be bad days, right? And you have to learn to live with it and just learn to show up. But I am taking that advice to heed and I am just listening to him and carry forward कर रहा हूँ. तो yes, you're right. And I think more or less इन्वेस्टिंग में भी यही फंडा होता है. रिस्की तो इन्वेस्टिंग भी होती है, बट यू जस्ट हैव टू कंसिस्टेंटली शो अप. हाँ, इसी बात पे ना मुझे एक डायलॉग याद आया, एक मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि हारने का डर
और जीतने की खुशी के बीच का जो वक्त होता है ना, बहुत ही अमेजिंग। अरे आई एग्री तो आई कैन एक्चुअली रिलेट टू योर आई थिंक ये पिंक का है शायद। नहीं ये जन्नत मूवी का है। जन्नत मूवी का है, जब इमरान हाशमी वो बैटिंग कर रहा होता है। सो या लाइक आई रियली अडोर दैट। मतलब वो डायलॉग जो है ना मेरे दिमाग में छप गया है, का जो फासला होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो दिस इज व्हाट आई कुड रिलेट टू व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट योर रिस्क। बट एनीवेज लाइक रोनित, यू नो लाइक हमारा शो जो है वो है #मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी, जिसमें हम कई सारी इन्वेस्टमेंट स्टोरीज कवर कर रहे हैं। सो नाउ आई वुड लाइक यू टू टेक अस थ्रू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ से शुरू हुई, मैं यहाँ से स्टार्ट किया, एंड वाज इट लाइक यू डिड इट ऑन योर ओन, आपने DIY किया, और वाज इट समवन हु एडवाइज्ड यू टू डू इट, और आज आपकी इन्वेस्टमेंट स्टोरी कहाँ खड़ी है, प्लस व्हाट इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन टू यू नो कीप इन्वेस्टिंग योर मनी। अच्छा, थोड़ा सा इस पे आई थिंक लंबा रहेगा ये। कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट आई डिड ओनली बिकॉज ऑफ मी या ऑन माई सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे जर्नी में मल्टीपल लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, राइट, लॉट ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये सेट करना चाहूँगा कि ये जो फंडा है, दिस केम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस पर्सन इन जनरल। ओके। तो यार इंडियन पोस्ट का एक SIP स्कीम आता है। हाँ, बहुत साल पहले था। तो जब मैं बच्चा था, मतलब रफली अबाउट 10 years 11 years, आई थिंक दैट वुड बी अराउंड 5th 6th स्टैंडर्ड टाइप्स। करेक्ट। तो मेरी एक दोस्त थी, उनकी जो मॉम थी, मदर, वो उस इंडियन पोस्ट के SIP की एजेंट थी। अच्छा। तो वो ना हमारे घर आया करती थी एवरी मंथ, एंड मेरी मॉम उनको ना पे किया करती थी कुछ, राइट। तो बिकॉज आई हैव बीन अ क्यूरियस चाइल्ड, मैं पूछा करता था कि ये क्या सीन है, राइट। तो मम्मी ने तभी मुझे बताया, एंड थैंकफुली इन माय फैमिली यूजुअली कॉन्वर्सेशंस विद रिस्पेक्ट टू मनी एंड वेल्थ वर आल्सो वेरी वेरी ओपन, इवन व्हेन आई वाज लाइक 5th 6th स्टैंडर्ड में था तब भी, राइट। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे तभी बताया कि रोनित, हम थोड़ा सेव करते हैं ताकि आगे जाके तेरी शादी होगी या कुछ बड़ा इवेंट होगा जिसमें पैसा खर्च करना होगा पेरेंट्स को भी, राइट। तो हमारे पास तभी पैसे रहे। अच्छा, आपको घर पे भी रोनित ही बुलाते हैं? रोना बुलाते हैं। बड़ा सॉरी, कंटिन्यू। हाँ, तो वो था, तो वहां से कहानी की शुरुआत हुई, क्योंकि वहां पे वो इंपॉर्टेंस जो होता है पैसे सेव करने का, वो एलिमेंट एक माइंड में आ गया था। ओके, राइट। बट ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट था तो पैसे तो कुछ कमाता था नहीं। तो यार फिर कहानी की शुरुआत उससे हो गई थी। मन में एक ये कॉन्सेप्ट बैठ गया था कि अगर आप एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा सेव करते हो तो एंड में पैसा काफी बच जाता है, एंड यू कैन बाय थिंग्स दैट आर ऑफ हायर वैल्यू। ओके, राइट। अब क्या हो गया था, कॉलेज खत्म हो गया था और मैंने कमाना शुरू कर दिया था, थोड़ी बहुत सैलरी आ रही थी। तो वो कॉन्सेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा था और मैंने RD शुरू कर दिया था, रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दिया था। इसी दौरान दो चीजें हुई मेरी लाइफ में जो आई थिंक आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड ये कॉन्टेक्स्ट में बैठेंगी। पहली चीज ये है कि आई केम अक्रॉस दिस बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। Right? So it's a very popular investing book which bursts a lot of myths about traditional investment methods. Right? तो while इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो बुक बहुत ही रेलेवेंट नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक रेलेवेंट है, बट जो दो बहुत बड़े पॉइंट्स मैंने उससे लिए वो ये था ऑन न्यू डेफिनेशंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। उस किताब में वो कहता है कि एसेट वो ऑब्जेक्ट होता है या वो बेसिकली एनीथिंग दैट गिव्स यू कैश फ्लो, दैट गिव्स यू मनी इन इज बेसिकली एन एसेट, एंड एनीथिंग दैट लेट्स योर मनी आउट इज अ लायबिलिटी। राइट। सो इफ यू बॉट अ होम ऑन EMI, तो जब तक तुम EMI पे कर रहे हो तब तक वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है, क्योंकि एवरी मंथ तुम्हारे अकाउंट से पैसा जा रहा है। हाँ, जब तुम वो घर बेचोगे तब तुम्हें पैसा आएगा, तो देन दैट बिकम्स बेसिकली एन एसेट। राइट। ट्रू। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था वो पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा जो था वो ये था कि जब भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम्हें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है, राइट। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, रियल एस्टेट हो गए, स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया। तो वो कहता है कि तुम रिसर्च तो अपना करोगे ही, बट तुम्हारी एक मेन जॉब होगी, राइट। तो उसके बाद कितना टाइम तुम्हारे पास होगा ये सब करने का। तो एक ब्रोकर या एक नोडल ऑफिसर पकड़ो, बीच का बंदा जो तुम्हें गाइड कर सके इस जर्नी में, राइट। मे बी अ फाइनेंशियल एडवाइजर, हाँ, समथिंग लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, राइट। तो जो तुम्हें गाइड करेगा कि कौन से स्टॉक्स में डालना है या कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है पैसा, एंड फिर तुम उसे क्वेश्चन भी करो कि यार ये फंड क्यों चूज कर रहे हो, ये फंड क्यों नहीं चूज कर रहे हो, इसका क्या लॉजिक है, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट वहां से मैंने पकड़ा, राइट। तो नोडल ऑफिसर को पकड़ो हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल में और अपनी जर्नी में उसको साथ ले चलो। तो ये मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग था। क्योंकि
आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी जहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स काम करते थे, राइट? सो आई केम अक्रॉस सच एजेंट इन अ नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, एंड उस एजेंट ने बताया कि भाई वो इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है और अपने क्लाइंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करते हैं वो। करेक्ट। तो तब वो लाइट बल्ब चमका कि अरे ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, ये यहाँ पे मैं ये ट्राई करता हूँ। तो वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। तो दैट पर्सन एक्चुअली गाइडेड मी अलॉट, दैट एजेंट गाइडेड मी अलॉट इन जनरल कि ये तुम्हारा फंड्स ऐसे सोचो, राइट? तो उसमें से एक सोच ये थी कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, ठीक है? कि क्या क्या कब तुम्हें पैसा चाहिए। चलो गाड़ी खरीदनी है आज से 5 साल बाद, घर खरीदना है आज से 10 साल बाद, शादी करनी है आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, राइट? तो उसको मद्देनजर रखते हुए इतना पैसा तुमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालना चाहिए, राइट? तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट, राइट? एंड ओबीडियंटली आई स्टार्टेड टू डू इट। एंड तभी हमारे मराठी में हम लोग उसको बोलते हैं काटकसर, विच बेसिकली मीन्स कि फ्रूगली रहना पड़ा हमें बहुत, क्योंकि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ माई सैलरी आई वॉज पुटिंग इनटू दैट इन्वेस्टमेंट, राइट? व्हेन आई से फ्रूगली आई डोंट मीन कि एकदम ही मतलब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम कम कर दो, बट इतना कर दो कि तुम स्प्लर्ज नहीं कर रहे हो, बहुत सारे पार्टीज नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो थोड़ा अमाउंट, आई वुड से 25 to 30% ऑफ सैलरी यूज्ड टू गो इन दैट, ओके, राइट? तभी लगता था यार ये क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग चिल मार रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं इतना क्यों अपने आप को पुश कर रहा हूँ, राइट? बट उसका फायदा मुझे बाद में नजर आया। तो तब तक ना मेरे को कन्विक्शन नहीं आ रहा था, मैं पैसा डाल रहा था, राइट? बट 2016 में सेंसेक्स का क्रैश हुआ था। हाँ, करेक्ट, राइट? एंड आई थिंक द रीजन वाज कि बहुत सारे बैंक्स के एनपीएस हायर देन एक्सपेक्टेड आए थे, एंड में नवंबर के अराउंड डिमोनेटाइजेशन हुआ था। करेक्ट। तो फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे इंडिया के काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया था, राइट? बट मार्केट क्रैश करा था एंड माय पोर्टफोलियो वाज स्टिल आई थिंक 15 to 18% अप पॉजिटिव, राइट? दैट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर मी कि यार ये तो मजेदार चीज है, राइट? कि तुमने इन्वेस्ट करा, मार्केट क्रैश हो रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, बट यार मेरा फंड फिर भी 15% नेट प्रॉफिट में है, राइट? सो दैट आई थिंक इज व्हाट आई टुक बैक विथ मी, एंड आई वुड से कि हाउ इट हैज हेल्प्ड मी इज कि नाउ आई एम ऑन माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एंड आई हैव व्हाइल माय मोटिवेशंस ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी आर मल्टीफोल्ड्स, वन ऑफ द रीअश्योरिंग फैक्टर इज कि यार बैंक में बैलेंस है, right? And I can sustain my lifestyle for roughly about at least 2 to 3 years without worrying a lot, and that is because of these investments that I've done in past 4-5 years. So I would say, yeah, in short, this has been the journey, and this is how it has helped me. So like honestly speaking, इससे मुझे भी ये सीखने मिला है कि बॉस, the investments that you do at right time will help you sustain for a longer time. And it has to be consistent. And it has to be consistent. तो मतलब actually this is something that everyone should learn from, कि यार आप एक बार इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो तो उसको कंसिस्टेंटली करते रहो. डोंट स्टॉप इट जस्ट बिकॉज यू हैव फियर कि यार डिमोनेटाइजेशन आ गया, कोविड हो गया या मार्केट गिर गया. इट विल कम बैक. बट या दैट्स अ ग्रेट स्टोरी आई वुड से. यार मैं यही बोलूंगा कि यार इतने सालों से आपको जानता हूँ, आई डिडंट नो कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है. अरे यार वो, हाँ मतलब इसके बारे में बात नहीं हुई. ऑल्सो बिकॉज आई थिंक जनरली सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट्स को लेके डिस्कशन करेक्ट नहीं करते लोग. आई डोंट नो इफ उसको कितना पॉजिटिवली देखा जाता है. मतलब ऑनेस्टली आपकी ये बात भी सही है बिकॉज, बट आई थिंक दैट शुड चेंज. आई डेफिनेटली फील दैट ऑब्वियसली. मतलब पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर मनी. दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर मनी. दे डोंट वांट टू शो मे बी. बट ठीक है. बट या यू आर राइट. आई थिंक बात होनी चाहिए नॉट अबाउट मनी बट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, लाइक so that we can learn from each other. Like I learned it from you today. But चलिए, मतलब moving on, Ronit, like my next question for you is very simple. कि we all have certain regrets in life, right? कि यार ये नहीं होता ना तो गेम चेंज हो जाता, या फिर ये नहीं किया होता तो शायद मेरा कुछ थोड़ा डिफरेंट होता. तो what is that one thing that you feel कि यार ये नहीं किया होता तो थोड़ा डिफरेंट होता गेम मेरा आज? यार तो इसमें ना मेरा थोड़ा सा उल्टा है. मेरा ये है कि मैंने ना यार कभी ऐसे बहुत ही डिजास्टर्स डिसीजंस नहीं लिए. Okay. तो मुझे जो रिग्रेट होता है ना वो मोस्टली ऑन द अपसाइड होता है कि काश मैंने ये डिसीजन लिया होता. बहुत कॉमन ट्रेडिंग मेंटालिटी है. बट सो आई एम अ बिलीवर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटकॉइन. बिटकॉइन एंड बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर था वो मैंने
2011 में पढ़ा था. आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. Okay. राइट. तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है मनी का इन जनरल, और मनी के कॉन्सेप्ट्स को लेके मैं इन जनरली काफ़ी क्यूरियस रहता हूँ कि कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या क्यों यूज़ होता है, क्या किस टाइप का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. राइट. तो मुझे तभी काफ़ी सही लगा था वो कॉन्सेप्ट, बट आई थिंक आई वाज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मैंने थोड़ा पुश नहीं किया यार. इंडिया में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12. Okay. इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हुई इन 2000 रफली 15-16 के आसपास. बट या तो मेरा रिग्रेट यही रहा कि while I knew about the technology, while I knew about Bitcoin when the value of Bitcoin was very very low, I did not push enough and I did not invest in it. I didn't have to invest my entire portfolio at that point of time, और बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं डालना था. राइट. बट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर तुम थोड़ा पैसा तो डाल ही सकते थे तभी. तो वो मैंने नहीं किया, और उस बात का रिग्रेट मुझे आज होता है. करेक्ट. ये है बस. ठीक है. इट वाज नाइस. तो रोनित, लाइक इट वाज अमेजिंग. आपके मतलब आई एम रियली शॉक्ड. आपने इतना सब कुछ बताया, मेरे को पता नहीं था आपके बारे में इतना कुछ. बट या लाइक before we end this, if you had to give certain suggestions to people about investment decisions, मतलब आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार रिस्क बहुत ज्यादा है. तो if you had to give certain suggestions to people, what would that be? हाँ यार, तो मेरी जो मैं जो कहने वाला हूँ वो थोड़ा सा आई थिंक लाइफ का ज्ञान टाइप भी हो सकता है. हाँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. That's fine. तो one thing that I would want to recommend is that while you guys do your own research and all of that technical fundamentals तो देखो, but believe in the power of compounding, right? Albert Einstein ने कहा था कि compound interest is the 8th wonder of the world, right? And उसने I think ये भी बोला था कि those who understand it earns from it, and those who don't understand it pay it, right? Correct. तो what I would say is कि consistently just invest like over a regular period of time. For some people it might not be, I would recommend कि monthly करो, but अगर नहीं कर सकते तो ये याद रखना कि उसको over a period of time अगर आप करते हो तो power of compounding से आपके पास जो end outcome आता है वो बढ़िया होता है. right? It's actually a very hard and tough thing to do, and more importantly, more interestingly, it is a boring thing to do. Okay. Right? अगर आप सोचो कि यार एक ही चीज मुझे every month करना है, it's actually very boring. Right? Correct. But जो outcome है ना वो बहुत ही स्वीट और लाइफ चेंजिंग होता है. राइट. तो आई विल रिकमेंड दिस. ओके. कीप ऑन इन्वेस्टिंग. कीप इन्वेस्टिंग. चाहे कितना भी डू योर रिसर्च अराउंड इट. राइट. बट कीप इन्वेस्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट एवरी मंथ और पीरियडिकली, एंड दैट विल गिव यू ब्यूटीफुल रिटर्न्स. ग्रेट. परफेक्ट. सो गाइज, लाइक टू गिव यू अ टेक अवे, ही हैज सेड इट वेरी नाइसली एंड वेरी ब्यूटीफुली कि यार कीप ऑन इन्वेस्टिंग. थोड़ा सा दर्द होगा इनिशियली, बट बाद में उसी दर्द से मोहब्बत हो जाएगी. ओह बिल्कुल, मोहब्बत हो जाएगी. तो रोनित, लाइक वी आर नॉट एंडिंग दिस. अभी इट्स टाइम फॉर वेल्दी फन ओ क्लॉक, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा रैपिड फायर क्वेश्चंस और आपको जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करना है. तो आर यू रेडी फॉर इट? आई नो यू आर नर्वस, यू वांट टू हैव अ बिट ऑफ वड़ा पाव. Why not? एक बाइट हो जाए फिर रैपिड फायर से यार बहुत डर लगता है. हर किसी को लगता है, मेरे को भी बहुत लगता है. 5 minutes later. तो ठीक है रोनित, शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड. आई हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट डिड यू लास्ट सर्च ऑन गूगल? वाइल्ड कैट बैंकिंग. और इसके बारे में एक पोस्ट आएगी लिंक्डइन पे अभी. क्या? वाइल्ड कैट बैंकिंग. वाइल्ड कैट बैंकिंग. हाँ ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच सुपर पावर वुड यू वांट? यार वो चार्ल्स एक्जेवियर, रीडिंग माइंड्स. आई एम वेरी क्यूरियस इन जनरल अबाउट कि लोग क्या सोचते हैं, मतलब क्योंकि डिसीजन जब लेते हैं तो क्यों लेते हैं. तो जनरली आई वुड जस्ट वांट टू नो. पर उसका लुक आपसे मिलता है तो ये भी हो सकता है. ठीक है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू कुड मीट समवन फ्रॉम हिस्ट्री, हु वुड यू लाइक टू? हाँ, शिवाजी महाराज. यार he had the ability to rally people up for a common cause, and वो एक लीडरशिप की बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है. मतलब ऐसी चीजें जो कोई सोच ही नहीं सकता, वो सिर्फ रोनित ही सोच सकता है भैया. ठीक है. हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड? ओके यार, यही जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग. राइट. जस्ट शो अप एवरी डे, जस्ट कीप शोइंग अप. इवन इफ यू हैव बैड डेज, कीप शोइंग अप द नेक्स्ट डे. Cool. Now last question. What would you prefer? 100 crore in your account or your company as a unicorn? My company as a decacorn. Oh, nice. Well, guys, this was rapid fire round with Ronit.
एंड इट वाज अमेजिंग सेशन. मैं सच बोलूं मतलब मुझे बहुत मजा आया. और या मुझे भी यार. और आई लर्न सो मच. I was actually very excited to come here, you know. I was Yeah. thinking कि यार this is going to be very fun, and especially knowing that you are on the other side, right? Yeah, correct. So I had no nervousness. I was like कि ये तो मजेदार होने वाला है. Correct. हमें थोड़ी एनर्जी लेवल्स टोन डाउन करने पड़ेंगे शायद. हाँ मतलब ये इंटरव्यू शुरू होने से भी पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार बस हम हमारी हंसी कंट्रोल कर ले. बट थैंक यू सो मच वंस अगेन रोनित. It was a pleasure. The pleasure is all mine. It was like amazing you know doing this with Yeah, you. and thank you for giving me this opportunity. अरे It means a lot. कम ऑन. अभी तो आप शुरू हुए हो. अभी देखना आप कहाँ जाओगे. Yeah. सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच. तो गाइज ये तो थी हैशटैग मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बाय रोनित. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टोरी हमारे साथ शेयर करें बाय पुटिंग हैशटैग मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी एंड टैगिंग वेल्दी along with your 3 friends. Some of the best inspiring stories will stand a chance to feature on Wealthy page along with some gift hamper. तो सोचो मत, शेयर करो. Think wealth, get wealthy.